السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے، پہلے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے شرک کے بارے میں بولتا ہے کہ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ تو جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہوتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان اور دیگر مذاہب، اس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نماز، اسلام میں نماز جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ تو چوتھا ہے حج کے بارے میں۔ تو دوستو ویڈیو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ضروری جاننا ہے کہ شرک تو اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور یہ جو پورا ویڈیو ہے، یہ پورا بیان ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اور ویڈیو دوستوں سے شیئر کرنا، کیونکہ آج کا جو ویڈیو ہے، یہ سمجھو کہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ اردو لیکچر ہے۔ تو آئیے دوستوں کرتے ہیں شروع اپنا آج کا ویڈیو۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9 میں، Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is the jealous God. اس کے معنی ہے Thou shall have no other God besides me. آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں۔ خدا فرماتے ہیں بائبل میں، آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں۔ Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. آپ کوئی بھی بت نہ بنائیں، کوئی بھی عکس نہ بنائیں، چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو، اس زمین پہ ہو، یا اس زمین کے نیچے پانی میں ہو۔ Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. آپ نہ ان کو سجدہ کرو، نہ ان کی عبادت کرو، کیونکہ میں ایک خدا ہوں، جلن رکھنے والا خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے، وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، انہ میں شرک باللہ، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ آپ کے لیے جنت حرام فرمائیں گا، آپ کے لیے جنت سورگ حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے صرف دوزخ کی انگار ہے، اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انو میں شرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت، ہیون، پیراڈائز از فوربڈن فار ہم، جنت اس کے لیے حرام ہے، سورگ اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا، لیکن میں نے بائبل پڑھا ہے، بائبل میں کہیں بھی ایک بھی سینٹنس نہیں ہے، ایک بھی جملہ نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، صاف طور پہ ایک بھی جملہ نہیں ہے سارے بائبل میں، صاف طور پہ there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement، ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے، unambiguous، بنا کوئی شبہ، ایک بھی جملہ نہیں، there is not a single unequivocal statement
in the complete Bible, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी बिना शुबा, एक भी साफ जुमला नहीं है जहाँ ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, या वो कहते हैं कि मेरी इबादत करो। बाइबल के बहुत से वर्जन है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का। अगर कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबह, जिसमें ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज़्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं, अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहि सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी यही नहीं है कि आप अपना चेहरा मगरिब या मशरिक की तरफ मोड़ लो, लेकिन नेकी यही है कि आप ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत पर, उसके मलाइका पर, उसके किताब पर, और उसके नबियों पर, उसके पैगंबर पर, और कदर। यह है ईमान के 6 अरकान। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैय्यों, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम अल्लाह के साथ किसी और को रब ना ठहराए, अपने आपस में किसी और को रब ना ठहराए। फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुड़ जाए, फ़कुलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं, हम हमारी सारी रजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत मेरे नज़दीक मास्टर की है फॉर दावा करने की एक अहम आयत है। जब भी कोई गैर मुसलमान से आप बात करते हैं, ये आयत बहुत अहम है। तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम किसी और को अल्लाह के साथ शरीक न करें। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ मुख्तसर से की गई है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतें जो कुरान मजीद में हैं सूरह इखलास की, ये टचस्टोन है थियोलॉजी की, एक तलिस्मा है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये शख्स खुदा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खुदा सही खुदा है कि नहीं, आप उसको सूरह इखलास की बुनियाद पे तोले, जज हिम ऑन सूरह इखलास। और अगर वो सूरह इखलास के कंडीशंस, जो भी शराइत है, उसके ऊपर उतरता है, तो हमें कोई एतराज नहीं उसे मानने में कि वो खुदा है। और ये पैगाम बाइबल में भी मौजूद है। मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनल हैन अदनल खद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है, योरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, सुनो ए बनी इस्राइल, हमारा खुदा एक खुदा है। जब ईसा अलैहि सलाम को पूछा गया था
सबसे पहला हुक्म क्या है? विच इज द फर्स्ट ऑफ द कमांडमेंट? उन्होंने हूबहू जो मूसा अलैहि सलाम ने कहा था उसको दोहराया, जिसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदनल हैनो अदना खद, योरो इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। सुनो ए इज़राइल, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है। सलाह, सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते, मदद के अलावा अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। सलाह का तर्जुमा टू प्रे या मदद मांगना सही नहीं है। मैं पसंद करता हूं सलाह को कहना अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या उर्दू में कहूंगा नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। क्योंकि इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90, जिसमें फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहां हमें हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूं सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 45 में उतलू मा हुम मिनल किताबी व अकीमुस सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आज़ान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूं या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूं, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह। जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है, लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। हज, हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और यह सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द 2 सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है क्या फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसान, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और बांटा है कबीलों में, बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे
से नफरत करे, और सबसे बेहतरीन वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान को जांचने के लिए सबसे बेहतरीन जिससे इंसान ऊंचा हो सकता है वो है तकवा, वो है नेकी। नहीं तो सारे इंसान बराबर हैं, चाहे काले हो या पीले हो या सफेद हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा या फकीर। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ नेकी के जरिए ऊंचा हो सकता है। और हज का जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 वर्स 4, 5, 6, 7, इसमें लिखा है ब्लेसेड आर दोज पीपल दैट ट्रैवल टू द वैली ऑफ बेक्का। सलामती है उन लोगों पर जो लोग मक्का की वादी में जाते हैं। बक्का एक दूसरा नाम है मक्का के लिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में। तो मक्का जाने का जिक्र बाइबल में भी है। यह था मुख्तसरन तौर पर इस्लाम के 5 अरकानों और ईसाईयत के दरमियान यकसानियत। ये 5 अरकान सिर्फ अरकान हैं। इसको अगर आप मजबूती से अमल करें, इंशाअल्लाह ढांचा इमारत भी अच्छी रहेंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत आता है लफ्ज अब्द से, जिसके मानी है बंदा। अगर हम अल्लाह का फरमान मानते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम हमारी रजा अल्लाह की रजा के हिसाब से चलते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामू, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अगर हम शराब से परहेज करते हैं, जुए से, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज रेजिंग। आप शराब मत पियो। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ज़कात, ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। ज़कात हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है अगर उसकी बचत निसाब से ज्यादा है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा है, इफ ही हैज मोर देन 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सेविंग, उस इंसान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% हर कमरी साल खैरात करे। फर्ज है। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गरीबी दुनिया से हट जाएंगी। एक भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में लिखा है सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में, ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, सो दैट द वेल्थ डज नॉट सर्कुलेट ओनली अमंगस्ट द रिच। ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे। ये फर्ज है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी, फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है जिसकी सेहत अच्छी है
کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے فجر سے لے کر مغرب تک، وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہینے میں، فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ If you can control your hunger, you can control almost all your desires۔ اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو، آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے۔ اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے۔ یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا، اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر۔ لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں، اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دو ایمان والیوں سے، مومن عورتوں سے، اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سر ڈھانک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے۔ پہلا ہے سطر، ایکسٹینٹ، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے، یہ چھپا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں، یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1۔ باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے۔ دوسرا نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں، اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ۔ نمبر 3، اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے۔ نمبر 4، ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے، ڈونٹ ویئر گلیمرس کلوتھس سو دیٹ اٹ اٹریکٹس دی اپوزٹ سیکس۔ 5واں نمبر، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے۔ اور 6واں نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہے، آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے۔ اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں، Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. آدمی عورتیں کے کپڑے نہ پہنے، عورتیں آدمی کے کپڑے نہ پہنے، جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے۔ لکھا ہے 1 ٹیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 9 میں، The woman should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. عورتیں آبرو کے ساتھ کپڑے پہنے، اپنی عزت بچا کے، پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، ایسے کپڑے پہنے، اور وہ قیمتی کپڑے نہ پہنے، نہ سونا پہنے، نہ بریڈڈ ہیئر آف گولڈ۔ اور 1 کورنتھین چیپٹر 11 ورس نمبر 5 اور 6 میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خدا کی عبادت کر رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی، اس کا سر منڈوانا چاہیے۔ سر ڈھانکنا اتنا اہم ہے عیسائیت میں۔ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں
उस शख्स को जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। खतना करना इस्लाम में सुन्नत है, बाइबल में इसका जिक्र है। बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 में खुदा ने कहा कि आप खतना करो, बी सर्कमसाइज, एंड एब्राहिम सर्कमसाइज आइजैक ऑन द 8th डे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशाक अलैहिस्सलाम की खतना की 8वें दिन पे। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22 में, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खतना करना चाहिए। लिखा है गॉस्पेल ऑफ लूक में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में, ईसा अलैहिस्सलाम की खतना 8वें दिन पे की गई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहा। यह लफ्ज क्रिश्चियन पहली बार आता है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 11, जहां पीपल ऑफ एंटियोक गेव द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एज अ निकनेम। ये एक लकब लोगों ने दिया ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। मैं मेरी सारी रजा खुदा के हिसाब से चलता हूं। जो भी कोई कहता है कि मेरी रजा खुदा की रजा है, उसे अरबी में हम कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम एक अच्छे मुस्लिम थे। और इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं मैं कुरान की आयत से, सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं, सबसे ज्यादा चाहने वाले वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।